अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू यंग गन्स। मैं हूं आपकी होस्ट मीशा उस्मान। यंग गन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो शोकेस करता है टैलेंटेड पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्होंने ना सिर्फ स्क्रैच से स्टार्ट किया लेकिन अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म रीच किया जो कि हम सब के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। नाज़रीन, बंद आंखों से तो सब सपने देखते हैं, लेकिन खुली आंखों से जो लोग सपने देखते हैं रियलिटी में सिर्फ वही अपनी मंजिल पा सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने टीनेज से ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट की और आज एक ऐसी जगह पे वो पहुंची हैं जहां वो सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुइज़ा, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम, it's lovely to be here. Muiza, would you like to tell us about your brand Virsa Accessories? What is it exactly? Yeah. What kind of jewelry do you make? Yeah, Virsa basically presents handcrafted jewelry, all kinds of jewelry. It's a blend of creativity and modernity. Why Virsa Accessories? Why did you come up with this name? It's a quite common name, but I selected because I felt I have a creative family background and it's something inborn, or I found it's in my blood. Since I haven't learned jewelry making or designing or anything related to this. Basically, you think कि विरासत से आपने Virsa को connect किया? Exactly. What I got in my blood, that is somehow you can say virasat. In your genetics. Yeah. Great. Okay, so where did your journey begin from? What age did you start? In my early childhood, my toys you can say were brushes and paints, and I used to make jewelry dresses for my dolls. Of course, every girl plays with dolls and Yeah. doll houses. Yeah. So how did jewelry come into the picture? Yeah, it started from right there. डॉल्स के साथ खेलते हुए कब मैंने ज्वेलरी बनानी शुरू की, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और डेवलप होते होते वो यहाँ तक पहुँचा। लाइक हर एज ग्रुप में डिफरेंट मटेरियल्स के साथ आई स्टार्टेड प्लेइंग और यही मेरे टॉयज़ रहे। और आई हैव बीन वर्किंग विद 8 to 9 मीडियम्स एंड आई कम अप विद these semi-precious stones and different kind of metals. Right now I'm doing with Virsa. Okay, our audience would love to know about the fact that why is your jewelry unique? How is it really different? Because the idea is unique. Yes. The idea behind Virsa is, as I have said, it's old, ancient Egyptian culture. The colors I use, the color of metal I use is different, and the designs are not copied. That is guaranteed. Of course. कोई भी design copied नहीं है. हर चीज़ जो है that comes from my originality, you can say. हर चीज़ ऐसे जो मैंने खुद डिज़ाइन किया. These jewelry items are very different. Yeah. Because they're made from metal. You Yeah. mold them yourself. Yeah. Wow. I cut them myself. I purchase them myself. इसकी selection, material selection, कौन सा metal जो है वो ज़्यादा आपके लिए comfortable है पहनने में और उसकी making में और वो सब. और अभी जो मेरा जिस medium में मैं currently काम कर रही हूँ उसको अगर देखें तो उसकी making भी बहुत different है. That appeals the audience. That makes it unique. How is it different? It's different in the sense it's like if you see very closely, अगर आपको थोड़ा knowledge हो इस चीज़ का, तो stones और metals की जो binding है that is not with machines, that is by hand, and that is very tiny wire. I just bind जैसे hand stitch jewelry है with stone and It's metal. very intricate. Yeah, it is. That makes it unique और यही चीज़ अपील कर रही है बाहर. Basically, when you started your business, Yeah. was it how did you exactly do it? Did you have an investment? आपके पास कोई बाहर से इन्वेस्टर आया था या आपके अपने फंड्स थे? How did you raise the capital? How did you begin it? Yeah, I started with my own savings. एक टाइम ऐसा भी था कि just for passing that time or make my time more interested, मैंने जॉब की थी for a very little time. Really? And I had savings, तो जब भी मैंने उसको quit किया, I had an idea और फिर मैंने So यहाँ how पर old invest. were you when you did this job? Like it's 4 to 5 years back I did for very little time. Great. So आपने अपनी सेविंग जमा की. Yeah. आपने फिर सोचा कि मुझे एक अपना बिजनेस खोलना चाहिए. बिल्कुल. It was incidentally you can say मेरा plan नहीं था ये. But a very good friend of mine, he forced me. You can say he is a founder of Virsa. Wow. He gave me true inspiration to start what belongs to you. Right. So this is how it started. Great. So Muiza, how did you come up with this idea?
करिए, why jewelry exactly? आपने बताया कि you used to play with dolls and you used to make their jewelry. But how did you feel कि मुझे मतलब अपनी friends या आपकी जो target audience है, for example teenagers हैं या जितनी भी आपकी women हैं, उनके लिए how did you feel कि you should make jewelry for them? Jewelry, why jewelry? That's a good question. Actually, from that little age I started this. और जब आपको appreciation मिलती है, you find your way. बिल्कुल. वो बच्चा जिसको कभी मना नहीं किया गया करने से, उस बच्चे को appreciation मिली, उस बच्चे को अपना एक स्कोप मिला जो मैं कर रही हूँ for passing my time और to play with them. उसको इंस्पिरेशन मिली, उसको आगे बढ़ने का चांस मिला. Moiza, what would you say was your true inspiration? When you probably saw कि एक मूवी है जिसमें बहुत अच्छी ज्वेलरी है, या did you see कि आप किसी शादी पे गई जो दुल्हन ने बहुत ही extravagant ज्वेलरी पहनी है? Was that your inspiration when you thought कि नहीं, this is the right time I should start making jewelry? No, I really don't remember when I took this decision. मैं बता रही हूँ जैसे ये हुआ accidentally, ये होता गया मुझसे, बहुत पसंद किया सबने और I never listened stop here. Moiza, who were your target audience? Initial audience are youngsters because they have enough energy. वो नई चीज़ों को try करना चाह रहे हैं, वो experimental हैं और my jewelry covers all age groups. Okay. From teenagers, below teenagers, then you can say working women, housewives. Great. So basically you cover a huge circle. Yeah. Moiza, we will learn more about this and your business. But audience, it's time to go on a short break. We will be right back. जी व्यूअर्स, वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और हम मोइज़ा राजपूत से विरसा एक्सेसरीज के बारे में बात कर रहे थे एंड आवर क्वेश्चन वाज व्हाट इज देयर टारगेट ऑडियंस. लेट्स टॉक अबाउट इट मोर. जी मोइज़ा, तो आपकी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस क्या है? Initially, if you say target audience youngsters हैं, ठीक है. they are energetic enough, they want to try new things, experimental होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है youngsters के लिए. लेकिन विरसा एक्सेसरीज में सभी एज ग्रुप अच्छे से कवर होते हैं. डू यू थिंक कि आपकी जो फॉर एग्जांपल 30 to 50 वाली जो एज ग्रुप है वो क्लाइंटेल आपकी है, वो परचेज करते हैं आपके ज्वेलरी आइटम्स? एग्जैक्टली, और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. आप हर एज ग्रुप की बात करते हैं, सभी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. ग्रेट. सो मोइज़ा, व्हाट वुड यू से इज योर ज्वेलरी, इज इट कैजुअल, इनफॉर्मल, इज इट सेमी फॉर्मल और फॉर्मल? It has all categories, it has all kinds. That's what I feel कि ये सक्सेसफुल ब्रांड बनने जा रहा है क्योंकि इसमें हर कैटेगरी की ज्वेलरी और हर ट्रेंड की ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है. राइट. सो मोइज़ा, लेट्स कम टू द मेकिंग पार्ट. हाउ डू यू एग्जैक्टली मेक इट? टूल्स आप क्या यूज़ करती हैं? बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में ज्वेलरी मेकिंग टूल्स इतने आराम से दस्तियाब नहीं हैं एंड आई फील कि मतलब मैंने वो सेट्स देखे हैं छोटे छोटे जो बीट सेट होता है और साथ में वो छोटी सी वो आ जाती है इलास्टिक वायर यू कॉल इट, वो आ जाती है, तो उसको तो आप बना सकते हैं. बट आपकी ज्वेलरी जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक आई थिंक एंड इट्स वेरी इंट्रिकेटली डिज़ाइंड. सो what stones do you use? It was quite difficult when I started. मेरे पास सिर्फ एक वायर कटर था. I used to play with metals with that cutter and later I found different tools. जैसे कि अब we have some authorized universities जो कि डिग्रीज करवा रही हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं ज्वेलरी से रिलेटेड, तो we have proper tools and kits in the wholesale market. But if you go a few years back तो ये सब available नहीं था, बिल्कुल ये सब नहीं था. So now I have a proper workshop. Wow. Oh, I said, yeah. Great. So what are your favorite colors? Which colors do you like to play with the most? All Egyptian colors. What they used to do, they used to wear all those colors like turquoise, yellows, rust, Reds. Yeah, ochres. Wow. so kind of those colors. That's nice. तो आपका बेस कलर बेसिकली क्या होता है? Is it golden or silver? Do you have a blend of both? No, not blend of both. It's a soil gold color. Nice. It's different from other colors. See, this is what is unique about your brand. So, Moiza, you basically showcase your products on different exhibitions on your Facebook page as well. You have a Facebook page. So, what do you feel? Is that enough
इन पाकिस्तान के आप जब शोकेस कर रही होती हैं अपने प्रोडक्ट, तो एग्जीबिशन पे डू यू फील कि इज़ इट सफिशिएंट इनफ कि आपके सारे क्लाइंटेल आ रही होती है, वहीं से ख़रीद रही है, या डू यू थिंक कि कुछ चेंज होना चाहिए? क्योंकि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वी सी आवरसेल्फ ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, तो ये है कि वी हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स. यू कैन से दीज आर स्टेप्स, इट्स नॉट द ऑल वी वांट. और ऐसा है कि एग्जीबिशंस का डिस्प्ले है, उसमें आपको ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म आपकी सेलिंग हो रही है, क्लाइंटल है, बिल्कुल, और वहाँ पर आपको डायरेक्टली लोग मिल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनको जस्टिफाई कर सकती हूँ एज यू हैव आस्क्ड कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, बिल्कुल, और इज़ इट रिलायबल और नॉट. हैंडमेड के लिए, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि इट्स नॉट रिलायबल, ओके, जो कि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. और जब लोग आते हैं, मिलते हैं एग्जीबिशंस में, सो आई टुक अ चांस कि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ इट इज़ रिलायबल. और अगर इसको आपने केयर करना है, इट इज़ हैंडमेड, इसको केयर की ज़रूरत है, ये मशीन मेड से डिफरेंट है, बिल्कुल, एंड इट्स डिफरेंट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे. तो आई फील कि वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ये सब कुछ दे सकती हूँ, और मुझे फेम भी मिलता है वहाँ पर. दैट इनकरेजेस मी. सो डू यू थिंक जो आपका फेसबुक पेज है, तो डू यू थिंक कि उससे ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म, और थ्रू एग्जीबिशंस के लोग आके फिजिकली परचेज करें? व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर? ऑनलाइन शॉपिंग आप कह लें, इट्स अनफॉरसीन थिंग. आपको पहले एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है. एग्जीबिशंस पे लोग आते हैं, दे विजिट, दे ट्राई एंड दे बाय. इफ़ दे आर सेटिस्फाइड, इफ़ दे हैव सम कंप्लेंट्स, तो वो मुझे बताते हैं, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई वेलकम कि आप क्रिटिसिज्म, या लॉट. ग्रेट. और अगर कोई प्रॉब्लम है ज़रूर आके बताएं, मुझे उसको इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा. ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किसी भी ब्रांड को कस्टमर्स का ट्रस्ट विन करना पड़ता है, थ्रू क्वालिटी और थ्रू रिलायबिलिटी एंड थ्रू वैरायटी टू. You're right, because I feel pictures के थ्रू you can't really make out कि क्या चीज़ है, और जब तक आप उसको फिजिकली फील करके देख ना सकें. Exactly. True. So, Moiza, tell us about something. This is a secret you need to tell your audience and fans. Yeah. कि whenever you're working, ठीक है, you definitely get big orders. आपको छोटे orders भी मिलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा orders भी मिलते हैं एक टाइम में. So what motivates you? मतलब when exactly do you work? आपकी working hours क्या हैं? And what motivates you? कभी-कभी नहीं दिल करता होगा काम करने का. Exactly. It's a human nature. हम अपने आप को बाइंड नहीं कर सकते हैं. रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, प्लेजर चाहिए होता है. लेकिन ऐसा है कि मैं अपना ज़्यादा टाइम काम में स्पेंड करती हूँ, एंड आई प्रेफर कि मैं ऐसे ही करूँ, बिकॉज आई हैव गिवन अ लॉट टू दिस वर्क. और अब जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और सक्सेस मिल रही है, और जो ड्रीम्स मैंने एक दफ़ा ड्रीम जो किए थे वो मुझे मिल रहे हैं समहाउ, तो फिर मुझे यही चीज़ मोटिवेट करती है. मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकती, मैं यहाँ एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकती कि मेरा दिल नहीं कर रहा, ऑल्दो आई फील समटाइम्स, बट आई कैन नॉट से दिस. और एक अच्छा फीडबैक किसी भी ऑर्डर का, छोटा है बड़ा है, एक अच्छा फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है मज़ीद काम करने के लिए. So, कभी ऐसा नहीं होता कि एक फैमिली में शादी आई हो या कोई फंक्शन हो which you need to attend, बट आपके पास एक ऑर्डर भी आया हुआ है और आपने काम भी करना है, so how do you balance it out? मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पर भी मुझे काम करना है, I prefer my work. You prefer your work, okay. So we'll come back to the online shopping part. Yeah. Do you think कि online page के थ्रू आपकी ज़्यादा बेहतर सेल्स हो रही हैं? What marketing strategy did you come up with? Actually it going along के exhibitions, वहाँ लोग आते हैं, विजिट करते हैं, और एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, और इस तरह से मार्केटिंग बढ़ती है. ठीक. और जब ऑनलाइन लोग देखते हैं तो वो रिलायबिलिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी होती है कि जो वो देख रहे हैं वो यहाँ अवेलेबल है, जो उन्होंने ट्राई किया, जो उन्होंने परचेज किया, वो यहाँ अवेलेबल है. So मोइज़ा, do you think कोई आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग प्लान बनाया, फॉर एग्जांपल कि वो आपके SEO बेस्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, या फिर आपकी फेसबुक खुद प्रमोशन वीडियोस एंड पिक्चर्स वो करता है? Exactly. So did you use any of those platforms, or probably Instagram? I have both accounts on Facebook and on Instagram I use, और दोनों से अच्छी मार्केटिंग होती है, posting pictures, getting likes and comments. जिस तरह फेसबुक का अपना SEO बेस्ड आर्टिकल्स भी होते हैं, गूगल के अपना AdSense है, so did you use any of those platforms? Yeah, of course.
यूज़ करना होता है बिल्कुल। और जब आप इतना पोटेंशियल दे रहे हैं अपने काम में तो बिल्कुल मार्केटिंग के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। So what did you do? What did you choose? Both Instagram and Facebook, both they help me a lot. They help you a lot. Yeah. Okay. So मोइज़ा आपने क्या hurdles ऐसे face किए? Because I understand कि पाकिस्तान में कोई इस तरह के professional courses नहीं है. I know PIFT and BNU, both the universities are offering jewelry making courses. Yeah. But do you think कि पाकिस्तान lacks the fact कि हमारे पास होने चाहिए और courses in curriculum or in academics, या probably आप normal कोई course कर सके for jewelry making. So did you face any hurdles from that point of view? Many times I faced actually, जब आपके बेस ईयर्स होते हैं तो ज़्यादा आप ये फील करते हैं लैकिंग्स होती हैं, मिसमैनेजमेंट्स होती हैं। BNU and PIFD both are authorized institutions, डिग्रीज़ हैं यहाँ पर, और अब आने वाले बच्चों को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, they can learn। लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान में हैंडमेड और क्रिएटिविटी को जो लेवल मिलना चाहिए वो बहुत स्लो रहा है, हमेशा से बहुत स्लो रहा है। अगर मैं बात करती हूँ 2 to 3 years बैक, तो वो सब फैसिलिटीज़ नहीं थी जो अभी अवेलेबल हैं। You're right. We'll get back to that point right after a short break. जी viewers, we are back from the break. And जैसे कि आप जानते हैं, I am also wearing Moiza's jewelry today, Versa Accessories. She is also wearing her jewelry from her new collection. So Moiza, what is your new collection about? I have many collections going to be launched. Festive collection, tussles jewelry. Tussles are in these days. Wow, tussles are very in these days. I would love to mention मेरी इश्क theme jewelry. अच्छा, wow. Yeah, वो भी है। और what is the ishq theme jewelry about? Ishq theme presents ishq between, or you can say relation between Allah and Banda. So my jewelry elaborates the connection between Allah and Banda, and the theory goes on. How exactly? With the colors, with stones and the making. उसका texture आप देखें और उसकी making देखें, वो और मेरी बाकी jewelry से different है. अच्छा. That's extraordinary. Great. So Moiza, क्या hurdles do you face बनाते हुए? कि एक earring जो है वो आपने क्योंकि खुद अपने हाथों से बनाया है, तो दोनों को मैच करना, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आती होगी। This is what creativity is. बिल्कुल मुश्किल होती है। एक चीज़ बनाना और उस जैसी दूसरी बनाना, पहला बनाना इजी होता है, कॉपी करना। हाँ, exactly. कॉपी करना वो मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन आई हैव प्रैक्टिस। सो मोइज़ा, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस? प्रॉब्लम्स अगर आप बात करें तो बिल्कुल जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग ईयर्स, आपके बेस ईयर्स, दे आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स, और वही प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए। और बीइंग अ गर्ल, जहाँ हमारी सोसाइटी में जिस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, औरतों को काम करते हुए घर से बाहर आना जाना, और वो सब, एंड स्पेशली मैचिंग द बोथ earrings and everything. Yeah, in making jewelry, if you talk, बिल्कुल उसमें भी मुश्किल होती है। I have a lot of experience, और मेरी प्रैक्टिस है, उसके बाद भी मुझे बिल्कुल टाइम टेकिंग है चीज़ों को मैच करना, एक जैसा ही दूसरा बनाना। एंड आई गेट ऑनलाइन ऑर्डर्स, तो वो देखते हैं जो बना है ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। और ऑनलाइन ऑर्डर्स में विनिंग द कस्टमर ट्रस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मोइज़ा, व्हाट डू यू थिंक कि मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर अदर फेलो एंटरप्रेन्योर्स, कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं और उनको कोई हर्डल्स मिले, सो शुड दे कंटिन्यू, या उनको मोटिवेटेड रहना चाहिए? पहले तो एक चीज़ लर्न कर लें, नेवर से स्टॉप टू योरसेल्फ। कहीं पर भी आपका कोई स्टॉप नहीं है, नेवर गिव अप। कितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके और कितनी हर्डल्स आ रही हैं, अपने आप को आपने कभी भी गिव अप अपने आप से नहीं करना। जो स्टार्ट किया है उसको फिनिश करना है, और ये आपको रास्ता दिखाता है। और जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं वही आपको सॉल्यूशंस भी, वहीं पे जाके सॉल्यूशंस भी आप मिल जाते हैं। सो आर देयर एनी नो गो एरियाज इन योर फील्ड कि यू वुड से कि यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए नए एंटरप्रेन्योर्स को? बिल्कुल स्टार्ट में केयरफुल भी रहना पड़ता है। बिल्कुल केयरफुल रहेंगे आप तो ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लर्न भी करेंगे, क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हैं आपके बेसिक ईयर्स में। तो आपको बहुत सारे नो गो एरियाज भी फेस करने होते हैं, एंड दे आर नॉर्मल। मैं उनको इतना समझती नहीं हूँ कि दे आर ह्यूज प्रॉब्लम्स, वो आपको फेस करने होते हैं, और लेटर आपको
एक वाइट पाथ मिल जाता है. Where do you see yourself in 5 years from now? 5 years are too far. Okay, 2 years. I see my brand on a great platform in a near future. मैं चाहती हूँ कि इसका like बड़े brands और successful brands के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोलैबोरेशन करना. Wow. और बिल्कुल इसका विरसा का अभी तक परमानेंट डिस्प्ले नहीं है. True. I used to do online, I used to give online services and I conduct exhibitions. बिल्कुल. तो इसका परमानेंट डिस्प्ले Great. initially, then on a big platform, big That's wonderful. fashion exhibitions को कैच करना, वो टारगेट है मेरा. एंड एक चीज़ पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने के बाद आई वुड लव टू गो इंटरनेशनली. That is wonderful. थैंक यू. So, Moiza, let's come to the handicrafted part. Do you think कि पाकिस्तान में वो वैल्यू नहीं दी जाती हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, हमारे हैंडक्राफ्टेड चीज़ों को? In your case, jewelry. बिल्कुल. एक एंटरप्रेन्योर, एक क्राफ्टर, एक आर्टिस्ट वहीं पर डीमोटिवेशन फील करता है जहाँ पर उसको वैल्यू नहीं मिलती. जहाँ पर आपका प्रोडक्ट डीवैल्यू होगा, Devalue. हाउ कैन यू ग्रो? तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी एनजीओज़ और ऐसी बॉडीज़ होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में जो हु कुड फाइंड आउट दोज क्रिएटिव आर्टिस्ट और यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स, people, या बिल्कुल. एंड दे शुड हेल्प देम टू प्रमोट देयर टैलेंट. हाँ, true. So that will make their way easy. They're very easier. Yeah. True. So, Moiza, do you see yourself successful? Whatever I dreamed, I got. और ऐसे ही आगे मुझे इनकरेज मैं होती हूँ, मैं अपने आप से ही मोटिवेट होती हूँ. मैं मज़ीद आई कैन सी मोर ड्रीम्स और मैं उनको पूरा करने के लिए ट्राई भी करती हूँ. स्ट्रगल भी है, स्ट्रगल तो हम करते ही हैं. अपना 100% तो आपने देना ही होता, उसके बगैर यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. लेकिन देयर इज़ अनसीन हेल्प फ्रॉम अल्लाह, वो भी आपके साथ है, उसके बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. बिल्कुल. So, do you have your family support? येस, ऑफ कोर्स. फैमिली सपोर्ट के बगैर मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान होता है रास्ता. प्रॉब्लम्स इतने इजी हो जाते हैं, सॉल्यूशंस इतनी जल्दी मिल जाते हैं. फैमिली सपोर्ट कम्स फर्स्ट. Of course. So, do you plan to get married in the next 5 years? Yes, I will. You will. And will you continue your business after marriage? Of course, I will. I would prefer personal life goes on with your work. वो रुक नहीं जाती है, वो इसमें और रुकनी चाहिए भी नहीं है. एग्जैक्टली वो इसमें मिक्सड अप नहीं हो जाती, कुछ भी मिक्सड अप नहीं होता है, वो सब चलता रहता है. और आफ्टर मैरिज में मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड गेट अ चांस टू प्रमोट, टू एक्सपैंड माई बिजनेस मोर. Of course. Yeah. Roam around the world. Yes, and, it would be promote it easier then. internationally. Yeah. Of course. So, Moiza, to your audience, what message would you like to give them? कि आपकी जो jewelry collection है, they should try it, and why should they basically try it? How is it really unique? I would say must try it. And when you try it, you will come to know how different it is, how comfortable it is, कितना wearable है. If you are working women, don't hesitate wearing this jewelry during your working hours. It is lightweight, it is comfortable, it is not that itchy. आप होता है rings, आप थोड़ी देर के बाद भारी नहीं है. You don't feel कि आपको थक रहे हैं आप ये jewelry पहन के. And what I love about your jewelry is I can wear it to an event, to a birthday party, to a wedding as well. Yeah. ऐसा नहीं मुझे फील होता कि ये बहुत casual है या informal है. When I used to do job, मेरी रिंग्स भी मेरे टेबल पे रखी होती थी, क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप नहीं पहन सकते हो. आप यू डोंट फील कंफर्टेबल वेयरिंग दोज ज्वेलरी पीसेस. लेकिन विरसा में इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि आप हर इवेंट पे हर एज ग्रुप के लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और हर टाइम पर आप इसको वेयर कर सकते हो, कैजुअली, फॉर्मली, जिस तरह से भी आप चाह रहे हो. What I love about your jewelry is that it does not harm you in any way. ये आपको allergies नहीं देता, ये sensitive Exactly. skin के लिए भी perfect है. Selection of material is very. I selected those material very wisely. Moiza, it was lovely having you on our show, and we wish you the best of luck for the future. And I hope कि आपकी clientele बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा आपकी target audience देखे आपके products, उनको खरीदे और उनकी value करे. Thank you so much. व्यूअर्स, हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आप भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं या किसी को जानते हैं तो जो फ्लैश हो रहा है हमारी स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम. और हम दोबारा मिलेंगे इसी शो पर एक नए एंटरप्रेन्योर के साथ.
मैं हूँ आपकी होस्ट मीशा उस्मान। अल्लाह हाफिज़।